सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिकली बैलेंस शीट का मतलब क्या है। बातें नहीं है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर इक्विटी कैपिटल, इक्विटी को ही हम कैपिटल बोलते हैं। एसेट्स बेसिकली एनीथिंग विच इज ओन कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस विच हैज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मनी वैल्यू। लायबिलिटीज द ऑब्लिगेशंस विच वी हैव टू पे टू द आउटसाइडर। Liability simply means कर्जा. Whenever we are preparing the balance sheet of a company, then it must be prepared as per Schedule 3rd of the Companies Act 2013. And Schedule 3rd का Part 1 gives the format of the balance sheet. So you have to remember this format which is given in your notes. First of all, if you see balance sheet of XYZ Limited, asset, notes to accounts, particulars, figures at the end of current reporting period, figures at the end of previous reporting period. ठीक है, it means you have to give the balance sheet of current year data, you have to provide the data of current year as well as of previous year. In the first main head of the balance sheet is equity and liabilities, where equity means you can note down in Hindi. इक्विटी का मतलब होता है मालिकों का पैसा। इक्विटी का क्या मतलब होता है? मालिकों का पैसा। एंड लायबिलिटीज सिंपली मीन्स कर्जा। लायबिलिटीज सिंपली मीन्स कर्जा। बेसिकली इन दिस हेड वी विल बी शोइंग ओनली टू थिंग्स इन डिटेल्स। फर्स्ट, दैट इज मालिकों का पैसा, दैट इज इक्विटी, एंड द अनदर इज बेसिकली लायबिलिटीज। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो द फर्स्ट हेड इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड रिप्रेजेंट्स ओनर्स फंड्स, बेसिकली मालिकों का पैसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो मैंशन इन दी नोट्स दैट शेयर होल्डर्स फंड इज मालिकों का पैसा। तो व्हाट डज मीन, व्हाट कंस्टिट्यूट्स ओनर्स फंड? यहाँ पर क्या क्या आएगा ओनर्स फंड में? इट विल बी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो देर आर थ्री थिंग्स विच विल बी कवरिंग इन शेयर होल्डर्स फंड: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड money receipts against share warrants. In share capital, what you have to show? You have to show in notes to accounts of share capital. Just look at me. You have to show in notes to accounts of share capital different kinds of share capital, like authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital. Subscribed में you have to show subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up. So this is the main element of balance sheet in this chapter, issue of shares. So first we should discuss this in detail. I think it will be given in the notes to accounts. So please come at that stage and let's see. So authorized share capital example is given. So basically I am explaining you with the help of example. Just look at me. In the share capital, in the notes to accounts of share capital, you have to mention, इधर देखेंगे, you have to mention authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, and in subscribed there will be two parts: subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up. Authorized and issued share capital are shown only for the information purpose. इधर देखो, authorized and issued share capital are only shown for the information purpose. They never become the part of total in the balance sheet. But issued share capital is actually, subscribed share capital is actually that capital which is actually subscribed by the public, through which money flows. So that will become the part of the total. समझ में आया? And in subscribed share capital there will be two things. Two things कौन कौन सी है बताओ सभी बच्चे? Subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up. A capital is said to be subscribed and fully paid up when two conditions are met. बताइए कौन कौन सी दो conditions थी? I have already explained you in my first lecture. बताइए। हाँ, शेयर द कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। यहाँ ध्यान दो पढ़ने पे। शेयर होल्डर कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। एंड सेकंड क्या है बताओ? कंपनी है शेयर होल्डर्स हैज पेड एंटायर नॉमिनल। कंपनी ने पूरा पैसा मंगा लिया है और शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया है। इफ एनी ऑफ these condition, if any of these two conditions failed, then capital will be shown in the subscribed but not fully paid. ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो बस यही था। इफ़ यू हैव इक्विटी शेयर देन यू हैव टू शो ऑथराइज में इक्विटी प्रेफरेंस, इशूड में इक्विटी प्रेफरेंस सेपरेटली, सब्सक्राइब्ड में जो है इक्विटी अलग, प्रेफरेंस
अलग, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड आल्सो ऐड रेलिवेंट केसेस लाइक इफ देयर इज ओनली कोल सिनेरियर, फर्स्ट केस इफ देयर इज ओनली कोल सिनेरियर के बाद इफ देयर इज फोरफिटेड ओनली एंड इफ आफ्टर फोरफीचर देयर इज रीइश्यू ओनली। समझ में आई बात या नहीं? So we have to combine these cases and understand the impact, how it will be shown in the balance sheet. So just look into the notes to accounts or the examples. The example which is given in the books, you have to copy it in your notes to accounts. In next class I will check your register, ध्यान रखना, otherwise I am not going to give you good marks. बाद में आप लोग गालियाँ देते रहोगे, that is your choice, but मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ I need your dedication as well, ठीक है। Authorized share capital is 1 lakh share at the rate 10 each, but out of 1 lakh share company has issued only 50,000 share at 10 each, application to allotment 8, okay। All money is duly received, prepare balance sheet. Simple, it's very very simple questions। बताइए, first you will prepare the balance sheet, just look at here, balance sheet में particulars, equity and liabilities, तो you will prepare the notes। You can say this is an extract of balance sheet, this is not full balance sheet। Balance sheet, equity and liability, shareholders fund, share capital, you will mention in the notes to accounts, and all calculation related to share capital will be done where? Will be done in notes to accounts. So let's come to the notes to accounts. In the share capital, the student has not made the column of notes to accounts, no issue, but you can make notes to accounts column. तो यहाँ पर there will be first notes to accounts and just look into the notes to accounts. हाँ जी, बताइए क्या मेंशन है in notes to accounts? You will get share capital. First there is authorized share capital. Authorized share capital is the maximum capital which a company can raise from the general public. This is shown only for the information purpose. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी बेटा, नोट्स खोल लो। आता नहीं है कि ओपन करने? अच्छा, नेटवर्क नहीं है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ठीक है जी। ऑथराइज शेयर कैपिटल में कितना आएगा बताओ सारे बच्चे? 1 लाख शेयर एट द रेट 10 each। 1 लाख शेयर एट द रेट, बाहर जाके देखे आओ घूम के, क्या पता नेटवर्क आ जाए, तब कर लेना। जाओ, पूरे कॉलेज में ही नहीं आते? अच्छा जी, तो अगली बार से नोट्स का पहले अरेंजमेंट रखना, ठीक है। अगर वरना अटेंडेंस लेके आप बाहर घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख शेयर्स एट द रेट कितना आया बताओ सारे बच्चे? 10 के हिसाब से। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। दिस इज शोन ओनली फॉर द इन्फॉर्म। इसको देखना, अभी हम टोटल का पार्ट नहीं बनाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट द पार्ट ऑफ टोटल। दिस इज जस्ट ओनली फॉर द शोइंग पर्पस। जो मैंने आपको बताया भी था कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और। ये दिखाने के लिए है, सो दैट यूजर्स कैन कम टू नो हाउ मच कैपिटल्स company can raise. Second is issued share capital. This is also similar, out of which how much we have issued. You can mention equity shares यहाँ पर 50,000 share at the rate 100, तो we have issued 5 lakh. Subscribed share capital, you should mention equity shares. Company has called entire nominal value and entire amount is paid, तो this is subscribed share capital, ठीक है। But यहाँ पर student has not properly mentioned. There should be a heading also in subscribed share capital, and that heading is subscribed and fully paid up. That heading should be subscribed and fully paid up. समझ में आई बात ये नहीं? Why this is subscribed and fully paid up बताओ सारे बच्चे? कंपनी ने हाँ पूरा पैसा मंगा लिया, पूरा पैसा दे दिया, तो 50,000 to 10 that is 5 lakh. I hope concepts are clear. बोलो हाँ या ना? चलो जी सर on the other hand what we can do, वैसे तो बेसिकली शेयर कैपिटल इज शोन ऑन दिस, बट देर विल बी अदर साइड ऑल्सो, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इफेक्ट। लेट सपोज द जर्नल एंट्री विल बी डायरेक्ट, देर विल बी बैंक अकाउंट, हाँ या ना? ऑल अदर अकाउंट्स हैव बीन कैंसिल्ड। जस्ट लुक एट मी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नेक्स्ट एंट्रीज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन हैज बीन कैंसिल्ड, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment debit and allotment credit. I hope you are getting. बोलो। in the balance sheet we post या we put only those accounts which have balance at the end. Those accounts which are eliminated in the process of journal entries, in the process of posting, then it will not be shown in the balance sheet. So in crux you can say there will be bank
बैंक का बैलेंस, हाउ मच शेयर वी हैव इशूड 50,000 शेयर्स एंड द अमाउंट इज ₹10, तो वी हैव रिसीव्ड इट. एंड ऑन द बैलेंस शीट बैंक इज शोन, बैंक इज अ current assets, the bank balance is current. You know what is current assets? Those assets which can be realized in cash, या which are already in the form of cash and cash equivalents, which are held for the purpose of being traded, या जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड होता है, that is basically current asset, जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में रियलाइज करने की कोशिश करते हैं. एंड देयर इज अ हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स. जस्ट लुक एट हियर, व्हाट इज द हेडिंग? What mnemonic code I have made it? CIT CSO. CIT CSO. You can also remember it. You can also learn it. Commissioner of Income Tax. This is Commissioner of Income Tax. CS. कंपनी सेक्रेटरी के ऑफिस में मिलने गया. कहाँ गया बच्चों बताओ? कंपनी सेक्रेटरी सुना होगा आप लोगों ने. CS बोलो. Yes, sir. तो in the first heading you will see what you will find in the CIT CSO. In first heading, C say current investment. You can see the balance sheet. It is mentioned in the balance sheet. You have to learn it. Current investments. I say there will be inventories, and T say trade receivable. C say cash and cash equivalents. And S से क्या है? Short term loans and advances. O से क्या आएगा? Other current assets. In the balance sheet it is already mentioned. Just जहाँ पर balance sheet given है, इसके ऊपर वाले को थोड़ा फॉर्मेट देखो आप. दिख रहा है सब बच्चों को? ये देखो, ये फॉर्मेट दिख रहा होगा, CIT CSO. मतलब ऐसे बच्चे हैं कि खुद से कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. अगर मैं आपको कनेक्ट ना कराऊं तो भाई मेरे यार, खुद की भी थोड़ी कॉमन सेंस लगा लो एटलीस्ट. पूरे नोट्स देख लिए हैं. तो करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है बेसिकली बताइए. इसके अंदर की भी बातें हमें याद रखनी होती है. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स. बट लेस देन 12 मंथ्स के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, दैट इज बेसिकली करंट इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेंट्रीज के अंदर क्या आएगा? लूज टूल, स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स. जस्ट ट्राई टू रिकॉल चैप्टर 1 of 3rd book, class 12th. If you have your notes of class 12th, you can also recall that. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल consists only 2 items basically, debtors and BR. Debtors are those person to whom we sell goods on credit and from whom we have to receive the money. And BR, एक negotiable instrument through which we will be getting the funds on a particular date from a specified person. Cash and cash equivalents, जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में होते हैं. इट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश विद एन वेरी इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू. दीज आर द डेफिनेशन. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेसिकली दोज लोन्स एंड एडवांसेस विच कंपनी हैज़ गिवन टू इट्स एम्प्लॉइज, या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनी, या लेंडर्स, या डेटर्स, क्रेडिटर्स, or someone for a short period. That is basically known as short term loans and advances. Next क्या है? Other current assets. Other current assets, basically all those current assets which has not become the part of earlier 5 current assets, either of C, I, T, C, S, जो इन पांचों में से कहीं पर भी नहीं शो हुई है. Like accrued income, है ना, prepaid expenses, dividend receivable, someone जो भी which we have to receive. So this is the basically asset side. So sir, in the bank, in our question bank element was there. So bank will be shown. बताइए where it will be shown. You have to keep it proper head. So what is the proper head of bank? ये वाला, this one is cash and cash equivalent. I hope concepts are clear. बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. Now cash and cash equivalents में cash at bank is mentioned. Please look at the balance sheet, below example. Format for share capital. In notes to accounts, it is mentioned notes to accounts, authorized share capital. हाँ या ना? Yes sir. So that's why I told you कि please copy it. But none of you are ready to invest your time. You all are just coming and बस ख़त्म यार, ऐसे आ जाओ मुँह उठा के. अगर आप इसको अपनी कॉपी में नोट करोगे तो और भी कुछ बातें लिख सकते हैं. फिर तो क्या है, मैंने भी अटेंडेंस दे देनी है, अपना मज़े करो. कोई ट्यूट में इतना पढ़ाने की ज़रूरत थोड़ी है. ऑथराइज शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, हाँ या ना? इशूड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में देयर विल बी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल. 10 मांगे 10 मिल गए हैं,
दैट उसको बोला जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। आई विल नॉट अलाउ यू इन माई नेक्स्ट ट्यूट इफ़ यू हैव नॉट कॉपीड डाउन द नोट्स। सीधी बात ये ध्यान रखना आप सभी बच्चे। आई विल प्रोवाइड यू द अटेंडेंस बट विल नॉट अलाउ यू टू अटेंड द क्लास, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्या आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में बताइए। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फेल्ड, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज फेल्ड, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू बट कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू, लेकिन शेयर होल्डर्स हैज नॉट पेड। लाइक एग्जाम्पल 10 मांगे पेड 9, बोलो हाँ या ना, या फिर 9 मांगे और 9 ही मिले हैं, तो 9 मांगे 9 मिले हैं। चलो जी, यहाँ पर अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल गिवन है, इसको भी अभी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो इस वाले एग्जाम्पल पर अभी हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। सबसे पहले हम कंपनी की बैलेंस शीट को एक बारी जल्दी से पूरा का पूरा याद कर लेते हैं। चलें फटाफट, बोलो, सो दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द एंटायर बैलेंस शीट। तो फर्स्ट जस्ट यू हैव टू लुक एट मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। You have to learn the format as it is, and apart from learning the format, you have to understand what will be included in their heads, what will be their subheads, ठीक है। तो first heading is equity and liabilities, where equity means owners fund, liabilities means debts, obligations, and the first main head under the head equity and liabilities shareholders fund. Shareholders funds, it simply represent owners funds, मालिकों का पैसा। इट इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड्स अगेंस्ट शेयर। व्हाट इज शेयर कैपिटल? इट हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय मी, दैट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। आई होप थिंग्स आर क्लियर, हाँ या ना? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। Yes, there are some things also I have to explain, that is call scenario, share forfeiture, share reissue, what will be the treatment, these are pending. I am going to explain these also. And in the second hand, that is reserve and surplus. So it's very easy. बताइए, can any one of you please tell me what will be included in reserve and surplus? Security premium, very good. General reserve, okay, और DRR आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, है ना, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग वगैरह आ जाएगा, एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स which company has created, whether it's capital nature, profits or revenue nature. SPL का बैलेंस समझ में आ रहा है सब बच्चों को? And there is third head, that is money received against share warrants. What is the meaning of this? Share warrants are those instruments against which company will issue shares in the near future. कंपनी इन नियर फ्यूचर में इनके अगेंस्ट क्या इशू करेगी? शेयर्स। तो दैट्स वाई दीज आर शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। समझ में आया सब बच्चों को? बोलो, इफ यू हैव मेड द बैलेंस शीट देन नोट डाउन इन रिजर्व एंड सरप्लस। साथ के साथ थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, ऐसे देखो जैसे मैंने लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, DRR, CRR, सो दैट आपको ध्यान रहे। SP you can write down in short format, make a bracket and note down in the bracket सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, फटाफट करो भाई, उसके सामने लिख लेते ना। कहाँ लिख रहे हो आप बताइए? बैलेंस शीट एसेट साइड ऊपर नहीं बनाया था क्या? तो उसमें तो लिखो, पता नहीं कहाँ लिखने में लग रहे हैं। चलो जी सर, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, CRR, DRR भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वगैरह सब। मनी रिसीव्स अगेन, ये आइटम अगर आपको मिलेगा तो दिस विल बी इंडिविजुअली गिवन, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013 और इसके अगेंस्ट कंपनी नियर फ्यूचर में शेयर्स इशू करेगी ही करेगी, सर्टेनिटी है। दैट्स वाई इट इज शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। Second main head is share application, money pending allotment. What is share application, money pending allotment? Simply means those application against which allotment is yet pending. Company is not sure whether they will issue shares or not. If the company is sure that it is not going to issue the shares, it simply means company is going to refund the amount, then it will not be shown here. अगर share application money pending allotment refundable है तो it will be shown under the head current liabilities. It will be shown under the head current liabilities in other current liabilities. Actually, you know, there is a concept that minimum 90% application must be received for issue of shares.
पता है आप सब बच्चों को? जब तक अपने को 90% एप्लीकेशंस नहीं मिलेगी तब तक हम शेयर्स इशू नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? अब समटाइम लेट्स सपोज वी हैव इशूड शेयर्स ऑन 20th March and balance sheet is preparing on 31st March and peoples can apply up to 10th April. लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 10 अप्रैल तक। तो what will do? On 31st March we have received some applications but जिसके अगेंस्ट अभी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या है? पेंडिंग है। एंड वी इवन डोंट नो, क्योंकि अभी तक तो कितने परसेंट मिली है? 80%। बोलो ना भाई, अभी तो 10 दिन बच रहे हैं, हमें क्या पता कि 10 दिन में 10% और आ जाए। तो वी आर नॉट श्योर कि हम शेयर इशू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें रिफंडेबल का भी नहीं पता है। तो इस तरीके के केस में जो शेयर एप्लीकेशन मनी जिसका भी अलॉटमेंट पेंडिंग है दैट इज शोन सेपरेटली, उसको मेरे बच्चों कहाँ शो करा जाएगा? सेपरेटली। आई होप क्लियर हो गई बात। थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मीन्स बड़ा कर्जा, दोज लायबिलिटीज विच वी हैव टू पे आफ्टर 12 months और आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज। And what is the mnemonic code of non-current liabilities? You have to remember it in this way, LOL. LOL वर्ड सुना है सारे बच्चों ने? LOL वर्ड लाइक फेसबुक पे या फिर हम इंस्टाग्राम पे जब हमें हंसना होता है, आजकल तो इमोजीज वगैरह भी आ गई है, वरना अदरवाइज हम क्या वर्ड यूज़ कर देते हैं? लोल। लोल बीच में क्या कर दो? डी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलो जी सर। तो यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी सिंपली मीन्स बड़ा कर्जा एंड व्हाट इज द निमोनिक कोड ऑफ दिस? LOL बीच में डी। ठीक है, यू हैव टू लर्न इट इन अ सिमिलर वे। इधर देखेंगे इन नॉन करंट लायबिलिटीज आई हैव मेक LOL बीच में डी एंड इन करंट लायबिलिटीज आई आल्सो मेक सिमिलरली SOS बीच में टी। बीच में का मतलब सेकेंड नंबर पे टी। समझ में आया? सो दैट कि एक फ्लो बना रहे। देखो आप सारे बच्चे अगर आप करंट लायबिलिटीज का भी देखोगे तो वहां पर भी देखो क्या है निमोनिक कोड, थोड़ा हाईलाइट कर रखा है बच्चे ने डार्क, SOS बीच में। सोर्स वर्ड तो सबने सुना ही है, खाते पीते हम जो है समोसा वगैरह लेते हैं उसके साथ चटनी, उसको सॉस बोल दिया, बीच में टी। हमें याद करना है जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे याद कर लो, सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सरदार ने टर्बन, टर्बन माने क्या होता है? पगड़ी। ठीक है ना, उसने सन ऑफ सरदार ने क्या पहन रखी है? टर्बन पहन रखी है। LOL को आप ऐसे याद कर लो, लॉट्स ऑफ लव जो है डॉटर, लॉट्स ऑफ लव डी से होगा, डॉटर। पिताजी अपनी डॉटर को बहुत प्यार करते हैं, बोलो हाँ है ना? तो LOL और बीच में क्या आ गया? डी आ गया। तो ये आपकी अपनी है वो है, जहाँ सेम टू सेम अगर चीज़ें आ रही है तो यू हैव टू लर्न इट, यू कांट मेक इट एनी चेंज। समझ में आया? यू कांट मेक एनी चेंज इन इट। बेसिकली दिस फॉर्मेट इज गिवन बाय द शेड्यूल 3rd Part 1। दिस इज नॉट द बैलेंस शीट ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इन प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप यू कैन मेक चेंजेस। समझ में आया? एंड यू विल नॉट बिलीव इट विल हेल्प यू इन गिविंग अराउंड 7 to 8 marks if you get a question of 16 marks of company final account, then balance sheet format is learned here. You have to learn SPL also. You will get 15 to 16 marks and you have to do some adjustments. चलिए, what is non current liabilities which we have to pay after 12 months? तो what is the mnemonic code of this? LOL बीच में D। तो पहले वाले L से क्या आएगा जल्दी से बताएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सिंपली मीन्स कर्जा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है? आप किसी से उधार मांग रहे हो। तो वेन एवर कंपनी इज रेजिंग फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लोन, कंपनी कहाँ से पैसा रेज कर रही है? लोन के रूप में। बोलो यार, उसको हम बेसिकली बोलेंगे लोन, विच वी हैव टू पेड बैक आफ्टर 12 months। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में? डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, कोई बॉन्ड भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, कोई पब्लिक डिपॉजिट्स भी आ सकते हैं, अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स ले रही है। डी से आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम बोथ आर डिफरेंट, उस वजह से आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन कंपनी फाइनल अकाउंट। अभी जस्ट यू हैव टू लर्न द कोड, लर्न द हेड, एंड दैट इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यू विल ऑलवेज गेट a column of other in everything. Other का option you are also getting in non current liabilities. In current liabilities you are also getting other. हाँ है ना? In non current assets you are also getting other option, and in current assets you are also getting others option. Other simply means those heads which are of liabilities nature, which are of non current liabilities nature, but cannot be shown. But they cannot be shown in long term borrowings.
बोलो यार, deferred tax liabilities and long term provisions. Basically what we will be covering here, in other long term liabilities what you will include creditors और प्लस आउट क्रेडिटर्स या फिर बीपी, ये कोई आउटस्टैंडिंग जो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए पेंडिंग है. देर आर सम क्रेडिटर्स who don't pay the amount on due dates, who even don't pay within 12 months. Those creditors and expenses या BPs which are pending for more than 12 months, so they will be shown in other long term liability. I hope things are clear. बोलो. इसके बाद लास्ट वाले एल से क्या होगा बताइए सभी बच्चे. इन लास्ट वाले एल देयर विल बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन? प्रोविजन सिंपली मीन्स सेटिंग असाइड अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट्स फॉर मीटिंग सर्टेन लॉसेस या सर्टेन एक्सपेंसेस, द अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टेन. वी डोंट नो हाउ मच वी हैव टू पे. दैट इज बेसिकली प्रोविजन. If we make provision for long term liabilities, for long term expenses, then these are long term provision. And if we are creating provision for short term expenses and short term liabilities, these are known as short term provision. Example, just look at me, like provision for warranties, provision for warrant, provision for guarantee, provision for leave encashment. These are long terms. कोई whenever a company is selling any kind of product, they provide warranty or guarantee to the customers. बोलो. तो at that time they create a provisions कि that in future the product may be खराब हो सकता है, the product may be खराब को क्या बोलेंगे भाई, the product may get damaged या फिर the product may not work properly. In that case we will be using provisions for warranties. So but we don't know how much we have to pay, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा. प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉय छुट्टी नहीं कराएंगे उसके लिए हमने प्रोविजन बनाया. एंड इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स. क्या आएगा? प्रोविजन फॉर, यू ऑलरेडी नो वेरी वेल व्हाट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. यार वी डोंट नो हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे बिकॉज टैक्स इज बेस्ड ऑन इनकम एंड वी कम टू नो अबाउट द इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर. सो जब हमें इनकम ही नहीं पता है देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द टैक्सेस. So that's why we create provision for depreciation, provision for Diwali bonus. We don't know how much Diwali bonus will be paid to the employees. I hope clear हो गई बातें. तो long term provisions में यही आएगा, provision for gratuity, someone is retired and this. So just recall it and say with me या जो भी announce with me. बताइए सारे बच्चे. पार्टिकुलर्स फर्स्ट हेड बताओ. पार्टिकुलर्स फर्स्ट हेड, मेन हेड बोलो सारे बच्चे. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर फर्स्ट हेड शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा जल्दी बोल. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ देख के बोलना है. थर्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर फंड. सेकंड मेन हेड विल बी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. थर्ड मेन हेड विल बी नॉन करंट लायबिलिटी. व्हाट इज द निमोनिक कोड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज? LOL, बीच में D. तो पहले वाले L से क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग. D से क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट. O से क्या आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. एंड L से लॉन्ग टर्म प्रोविजन. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दीज आइटम्स इन डिटेल्स विद देयर सब हेडिंग्स या विद देयर इंक्लूजन आइटम्स. नाउ कम टू द करंट लायबिलिटीज. बोलो हाँ या ना बच्चों. तो व्हाट इज करंट लायबिलिटी जल्दी से बताएंगे. करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? इन करंट लायबिलिटीज बट देयर इज अ निमोनिक कोड. बताइए व्हाट इज निमोनिक कोड? SOS बीच में. इट्स वेरी इजी. इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या आएगा? डिवेंचर्स या शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई शॉर्ट टर्म लोन विच कंपनी हैज रेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड. बोरोइंग सिंपली मीन्स कंपनी वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम समवन. ठीक है, बोरोइंग्स उधार लेना. एंड इफ द बोरोइंग इज डन फॉर अ लॉन्ग पीरियड देन इट विल बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. एंड इफ इट इज डन, if the amount will be paid in short period then it will be short term borrowings. क्लियर हो गई. जितने बच्चों ने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनी है एटलीस्ट बैलेंस शीट पूरी बना लो, लिख लो. और ये हाथ जेब में डाल के मत बैठो मेरी क्लास में, इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही है. पेन निकालो, कॉपी निकालो, लिखो और उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. ठीक है. सेकेंड हेड इज, बताइए व्हाट इज सेकेंड हेड? ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स के अंदर देयर विल बी टू थिंग्स. इसको लिखते क्यों नहीं आप? इसको पूरा नाम लिखो. ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा जल्दी से बताओ सारे बच्चे. ट्रेड पेबल्स में देयर विल बी टू थिंग्स. क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स और बीपी. तो लिखो आप इसमें क्रेडिटर्स प्लस बीपी. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ लिखो इसको पूरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स या बैंक ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट क्या है बताइए सारे बच्चे? SOS.
अदर करंट लायबिलिटीज, नेक्स्ट क्या है हमारा अदर। तो अदर करंट लायबिलिटीज में बट वी विल बी शोइंग, हाँ जी, अदर करंट लायबिलिटी में बहुत सारे आइटम आते हैं, जस्ट नोट डाउन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लिखो फटाफट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, कोई डिविडेंड हमने पे नहीं करा है, अनक्लेम डिविडेंड, कोई डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं करा है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है, डेट्स की ड्यूज डेट आ गई है वो हमें पे करना है, दैट इज क्या आ गया अदर करंट लायबिलिटीज। एंड व्हाट इज एस, लास्ट एस क्या है बताइए सारे बच्चे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो व्हाट वी विल इंक्लूड इन दिस शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर दिवाली एक्सपेंसेस लिख लो, प्रोविजन फॉर बोनस, ठीक है, दीज आर दी बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आई होप बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटीज यू हैव लर्नड इट प्रॉपरली, बोलो हाँ या ना। चलो लेट्स रिवाइज इट थोरोली, फटाफट जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। फर्स्ट हेड जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसके बाद बताइए सारे बच्चे सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड क्या आएगा बताओ, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा बच्चों का, LOL बीच में डी, तो पहले वाले L से क्या होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, D से क्या आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, O से क्या आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और L से क्या आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद करंट लायबिलिटीज बताइए, व्हाट वी विल बी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज, SOS बीच में T, तो पहले वाले S से क्या आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, T से ट्रेड पेबल्स, O से क्या आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज यहाँ पर नाम, और S से क्या आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एंड फाइनल विल बी टोटल। आई होप क्लियर हो गई बात। 2-4 दिन के लिए चीज़ें नहीं करनी है, यू हैव टू लर्न इट फॉर द लाइफ टाइम। चलो जी सर, तो सर अब तो हमें लग ही रहा है ये पूरी लाइफ टाइम याद रह जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द एसेट साइड। तो एसेट्स में देयर आर बेसिकली 2 एसेट्स, 2 काइंड्स ऑफ एसेट्स, बताइए कौन कौन सी एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट। नॉन करंट एसेट्स आर those assets which are purchased to run the business, which are purchased for long period, which are purchased to increase the earning capacity of the business, which are purchased not for the purpose of resale, जो बिजनेस को चलाने के लिए भी परचेज। आई होप क्लियर हो गई बात, बोलो। अब एक्चुअली नॉन करंट एसेट्स का आई वॉज अनेबल टू मेक फॉर्मेट, आई वॉज अनेबल टू मेक निमोनिक कोड फ्रॉम डायरेक्टली, सो आई मेक इट रिवर्स। अब रिवर्स में व्हाट निमोनिक कोड आई हैव मेड इट, जस्ट लुक हेयर, यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे, ओ से करा ओए, ओ से क्या बोला मैंने ओए, जैसे हम एक नॉर्मल सेंस में ओए क्या कर रहा है भाई, ओए लड़के, एल से क्या बना लड़के देख, डी से क्या बना देख, ओए लड़के देख क्या दिखा रहे हो भाई, ओए लड़के देख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब भाई तेरे को दिखाता हूँ, कोई साइंस वाले बच्चे को बोला है ओए लड़के देख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड, और साथ में हम उसको क्या दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बोलो यार, ये वाला फॉर्मेट थोड़ा पुराना है इसलिए यहाँ पर फिक्स एसेट्स लिख रखा है, पहले हमने बनाया था ओए लड़के देख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स एसेट्स। अब आज के टाइम इफ यू सी द नेम ऑफ फिक्स एसेट्स हैज बीन चेंज एंड द नेम ऑफ फिक्स एसेट्स इज चेंज इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर, बोलो। तो सारे बच्चे मेरे साथ निमोनिक कोड बोल दो एक बार, क्या है निमोनिक कोड नॉन करंट एसेट्स का, बोल गए ओए लड़के देख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, इधर देखो व्हाट इज प्रॉपर्टी, ये टेंजिबल हो गई, तो ये आ गई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आ गया, इसमें लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये सब आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन, विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, बोलो ना भाई। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बताओ सारे बच्चे, जो है गुडविल, पेटेंट्स, रेसिपीज, फॉर्मूलेज, ये सब आ जाएगा, बोलो। तो एक पीपी हो गया अब आज के टाइम, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, और सी तो सेम ही है कैपिटल WIP। व्हाट इज कैपिटल WIP, इफ देयर इज एनी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई मशीनरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट इज बेसिकली कैपिटल WIP। एंड लास्ट कॉलम इज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है, कोई वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है, समझ में आया मेरे बच्चों, तो उसको हम बोल देंगे ये। आई होप क्लियर हो गई बात। चलो रिवर्स में चलते हैं, ओए लड़के देख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पहले वाला हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है बच्चों, बोलो। सेकंड ऐड क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो
तो ये तो बच्चों वाली चीज़ें। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएगा बताओ? वो सारी इन्वेस्टमेंट्स विच वी हैव मेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। जो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों बताओ? इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब इट कैन बी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, बट इट शुड बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कितने पीरियड के लिए होनी चाहिए? लॉन्ग पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड वाली होगी तो वो कहाँ चली जाएगी? करंट इन्वेस्टमेंट्स में। बोलो ना भाई। चलो जी सर, ये भी क्लियर हो गया। ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। डी से क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट नेट। हाँ या ना? तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन। एल से क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सिंपल। व्हाट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस? इफ द कंपनी हैज गिवन, हाँ जी, इफ द कंपनी हैज गिवन लोन to employees, to subsidiaries, to any other person, creditors, debtors for a long period, चल देता रहिए यार, तो in that case that will be shown under the head long term loans and advances. Other non current assets basically वो debtors, वो BR which are pending for more than 12 months, तो that will be shown under the head other non current asset. अरे बोल दो। एंड लास्ट क्या होगा जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे? करंट एसेट्स। What will be the mnemonic code of current asset? जल्दी से बोलेंगे। CIT CSO, CIT CSO। तो C से क्या आएगा फटाफट बताओ? करंट इन्वेस्टमेंट्स विच आर मेड फॉर लेस देन 12 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट इन कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स। और इन्वेंट्रीज, व्हाट इज इन्वेंट्रीज बताइए? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर्स। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा? बेसिकली टू थिंग्स, डेटर्स और BR। बोलो हाँ या ना? CIT। C से क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड ऑल। एंड S से क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और O से क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन। दो लोन्स एंड एडवांसेस विच कंपनी हैज गिवन टू इट्स एम्प्लॉइज, या फिर सब्सिडरी कंपनी, या फिर किसी डायरेक्टर क्रेडिटर को दे रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, दैट विल बी शोन इन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स में व्हाट यू विल बी इंक्लूडेड? दोज करंट एसेट्स विच कैन नॉट कम इन अदर 5 हेड्स, दैट विल बी इंक्लूडेड इन अदर करंट एसेट्स। एंड इट कैन बी एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, इनकम रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल वगैरह वगैरह। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो दिस वाज द एंटायर बैलेंस शीट। नाउ लेट्स कम टू द शेयर कैपिटल रिमेनिंग पार्ट। आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट टुडेज क्लास। ठीक है? हाँ जी, बताइए सारे बच्चे। बैलेंस शीट में देखो कहीं कॉल सिनेरियो वाला कोई समझा रखा हो। ये आइए, पेज नंबर है आपका, हाँ जी ये आ गया पेज नंबर। कौन सा पेज नंबर है ये? एग्जाम, इसमें मेरे में ना पेज नंबर नहीं दिखे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा होगा सब बच्चों को। 10 रुपए का शेयर है, 2, 3, 5। बोलो, नहीं दिखा? कोने में लिखा हुआ है बैलेंस शीट के नीचे। ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख। हाँ ये चार्ट बना हुआ है, 1,10,000 के हिसाब से है, जिसमें इशू कितने करे हैं? 50,000 10 के हिसाब से। बोलो भाई। चलो 10 मांगे हैं, 10 मिले गए, 5 मिले, देखते हैं। अप्लाइड एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 5। ठीक है? ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू में 10, इशूड 50,000 इंटू में 10। तो एप्लीकेशन पे 10 नहीं होगा, एप्लीकेशन पे 2 होंगे शायद ये, क्योंकि पूरा 20 का बन जाएगा ना फिर। 500 शेयर पर क्या है? देखो क्वेश्चन में कुछ कहानी होगी। 500 शेयर पर हमें पैसा नहीं मिला है। सॉल्यूशन देखो, 49,500 पर पूरे पैसे मिल गए हैं। बोलो। तो 49,500 तो किसका पार्ट बन जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और जो 500 शेयर पर पैसे मंगाए लेकिन मिले नहीं, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। और उसको हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर देखेंगे। तो 500 शेयर पर 10 रुपये पूरे मंगाए और माइनस करके दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर।
बस ये सिंपल सा पॉइंट समझाना था कि वेन एवर यू आर नॉट रिसीविंग एनी कॉल्स देन दैट कैपिटल फॉर दिस शेयर विल बी शोन इन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर विल बी शोन एज अ रिडक्शन आइटम. If share are issued at premium, then amount received from premium will be shown under the head reserve and surplus. बच्चों वाली चीज़ है. और इसको किस नाम से दिखाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम. आज के टाइम हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखते हैं. बोलो भाई. If share capital is issued for purchase building machinery other than cash, then it should be shown separately, disclosed in notes to accounts under the head subscribed and fully paid up. Only if shares are fully paid up. तो उससे कोई मतलब नहीं है अगर आपने शेयर्स अदर देन कैश में भी इशू करे हैं तो जो बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर आएगी दैट विल बी शोन इन द रेलिवेंट हेड ऑफ द एसेट साइड. बोलो. बट जो कैपिटल है इट विल बी फुल्ली पेड अप कैपिटल एंड इट विल बी शोन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप इफ कैपिटल इज फुल्ली इशूड. इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विच इज स्टिल अवेलेबल इन द कंपनी विल बी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस. सिंपल. जो बचा है वही हम क्या करेंगे? शो करेंगे. समझ में आई बातें नहीं आई? बोलो. और कॉल्स इन एडवांस कहाँ शो होता है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. कहाँ शो करा जाता है? करंट लायबिलिटीज़ में अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटीज़. करंट लायबिलिटीज़ में कहाँ शो करा जाएगा? अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटीज़. ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं. XYZ लिमिटेड की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर 10 के ईच है, जिसमें हमने इशू करे हैं 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2. ऑल द मनी कॉल्ड एंड सारा का सारा पैसा मिल गया. तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है. सारा किस में आ जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. पहले ऑथराइज दिखा देंगे. ऑथराइज दिखा देंगे 1 लाख इंटू में 10. फिर इशूड दिखा देंगे. कितने इशू करें? 50,000 इंटू में 10. फिर सब्सक्राइब्ड दिखा देंगे 50,000 इंटू में 10 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. और जो प्रीमियम है उसको हम कहाँ शो कर देंगे? रिजर्व एंड सरप्लस. 50,000 गुणा में 2. नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे सारे बच्चे. ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू में 10. इशूड शेयर कैपिटल 50,000 इंटू में 10. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. बोलो भाई, समझ में आ रहा है? 50,000 इंटू में 10 5 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या शो कर दिया? सिक्योरिटी प्रीमियम और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो टोटल पैसा आया वो. चलो नाउ लेट्स कम टू द अनदर एग्जांपल. देखते हैं इसमें क्या है. कहता है XYZ लिमिटेड के ऑथराइज शेयर है 1 लाख शेयर है. इशूड शेयर कैपिटल 50,000 है. 10 का एक शेयर होल्डर है. 5,000 शेयर. बातें नहीं प्लीज़. यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा आया. 5,000 शेयर है. डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया. बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है. क्या करेंगे बताओ? ऑथराइज शेयर कैपिटल में हम 1 लाख शेयर शो करेंगे. इशूड शेयर कैपिटल में कितने शो करेंगे? 50,000. मेरी तरफ देखिए सारे बच्चे. इशूड शेयर कैपिटल में 50. इसके बाद वेन एवर वी आर गोइंग टू शेयर शो इन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, तो 2 कैपिटल बनेगी यहाँ पर. बताओ कौन कौन सी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड. तो 50 में से 5 को साइड कर दो. बुरे लोग अलग, अच्छे लोग अलग. अच्छे लोग वो होते हैं जो टाइम से पैसा जिन दे रहे हैं. बोलो ना भाई. तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा 45,000 शेयर पर एट द रेट 10 के हिसाब से 4.5 लाख. और जो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या आएगा? 5,000 एट द रेट 10. और उसमें माइनस करके दिखाएंगे हम कॉल्स इन एरियर. आई होप कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. बोलो. कितने का पैसा नहीं मिला है? कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट 5 और 3 8 रुपये नहीं मिले हैं, वो माइनस करके हम दिखा देंगे. चलो एक बार नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं कैसे कैसे दिखाया है. तो सर बिल्कुल बात जो आप हमें बता रहे थे ऑथराइज शेयर कैपिटल बिल्कुल ठीक है. 1 लाख शेयर 10. इशूड शेयर कैपिटल दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज जो हमने इशू करे हैं ये कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनता है. दिस इज शोन ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. बोलो. तो 45,000 शेयर पर ये अच्छे लोगों की डिटेल दिखा दी. अच्छे लोग जो सारा पैसा पे कर रहे हैं. नाउ जस्ट लुक एट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. 5,000 शेयर पर 10 के हिसाब से 50,000 माइनस क्या कर देंगे मेरे बच्चों? बताओ. कॉल्स इन एरियर. समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? एंड व्हाट इज कॉल्स इन एरियर बताइए? 5 और जो है इसमें से आप 8 है ना, 8 आप हटा सकते हो, 6 हटाओगे अब, क्योंकि कैपिटल आप उससे दिखाते हो ना फेस वैल्यू से, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी किससे दिखाना पड़ेगा? फेस वैल्यू से. कैपिटल फेस वैल्यू से आते तो ये भी फेस वैल्यू. 5,000 गुणा में 6. बोलो. तो 20,000 रुपये आए हैं. रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम मिला हो या ना मिला हो भी फॉरफीचर नहीं हुआ है, इसलिए पड़ा रहेगा. बोलो. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सारे शेयर्स पर दिखाया जाएगा. एंड दिस विल बी शोन ऑन 50,000 शेयर्स पर.
प्रीमियम इज ऑफ ₹2। प्रीमियम कितने रुपए का है मेरे बच्चे? ₹2 का है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। और प्रीमियम कहाँ शो करा जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आएगा? जो पैसा कंपनी को मिला है। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। अब कंपनी को कितना पैसा मिला है? ऑन 45,000 शेयर्स एंटायर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 40,000 इंटू में 12। बोलो ना भाई। एंड 5,000 शेयर्स पर कंपनी हैज़ रिसीव्ड ओनली बट कंपनी हैज़ रिसीव्ड ओनली एप्लीकेशन। तो ये आ गया है, इस तरीके से शो करना होता है। ठीक है, तो आप थोड़े बड़े बच्चे हो गए हो। जब व्हेनेवर आई टीच दिस इन क्लास 12th it takes around 5 to 6 classes to explain these, but I try to cover these important things in just in a class because you have already covered in class 12। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पर रीइश्यू वाली कहानी है। when shares are forfeited but not reissued, इस बार forfeit कर लिए हैं लेकिन रीइश्यू नहीं करे हैं। 5,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, तो वही वाली सेम कहानी है। 50,000 शेयर है, 10 का है, 5,000 शेयर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एज वेल एज दे हैव नॉट पेड दी कॉल्स मनी, कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट दी शेयर्स। ठीक है, अब बताइए सारे बच्चे, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करा रखी है, बताइए। वैसे आपको एंट्री की तो ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सीधा बैलेंस शीट पर आते हैं, एंट्री के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इधर देखेंगे, एक शेयर होल्डर्स फंड में आया शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट दिख गया 1। बोलो। अब सारे बच्चे जस्ट लुक एट मी, बाद में हम करेंगे। पहले मुझे बताइए, हाउ मैनी शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड? बताइए, हाउ मैनी शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड इन द क्वेश्चन? 50,000 शेयर्स, जिसमें से 5,000 हमने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो 5,000 को अभी अलग कर देते हैं। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, तो 45,000 शेयर्स वर लाइक दिस, देयर वाज नो डिफॉल्ट। तो 45,000 शेयर्स शैल बी शोन अंडर द हेड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बोलो हाँ या ना। चलो अब इन 5,000 की बात करते हैं। मेरी तरफ देखेंगे सभी बच्चे प्लीज़। 5,000 शेयर पर अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं मिली, बाद में हमने क्या कर लिए? फॉरफिट। इधर देखेंगे, समझ नहीं पाओगे वरना। ठीक है, इन 5,000 शेयर्स पर कंपनी डिडंट रिसीव्ड अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, नाउ यू हैव फॉरफिटेड। अब क्या करोगे आप बताओ? सर जैसे हमने करा था, जब व्हेन दे आर नॉट गिविंग द फंड्स, तो हमने कॉल सिनेरियो ओपन करा होगा। ठीक है, कॉल सिनेरियो किताबों में तब तक रहता है जब तक फॉरफिट ना हो जाए। लेकिन सर जैसे हमने फॉरफिट करा, थोड़ा लॉजिकली माइंड में ही करो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर दिस 5,000, तो कैपिटल खत्म हो चुकी है एंड एज वेल एज कॉल सिनेरियो भी खत्म हो चुका है। आई बात समझ? अब ये हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, ये उन्हीं के पल्ले पड़ेगा जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत कर रखी है। अरे बोल दो, क्योंकि फॉरफीचर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ एवरीथिंग। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल वाज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सब वी हैव क्रिएटेड द कैपिटल, बट शेयर होल्डर आर नॉट पेइंग, तो दिस इज नॉट अवर फॉल्ट। So what we will do? We will cancel. And we have also created call scenario. We have also shown on the debit side call scenario, and that was representing कि we will receive the funds, but shareholders are not paying the funds. So obviously that will also be cancelled. I hope things are clear. बोलो. Now there is only one separate account, that is share forfeited. And how? बताओ forfeited में क्या आता है? जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया होता है डिफॉल्टर्स से, पूरा बोलो इसको। जो अमाउंट हमें मिल गया है, और बताओ फेस वैल्यू के लिए। जो अमाउंट किसके लिए मिला है? फेस वैल्यू, प्रीमियम वाला नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर 5 रुपये नहीं मिले हैं, तो 5 हमें क्या हो चुके हैं? मिल चुके हैं। बोलो भाई। इधर देखो 5,000 इंटू में 5, दैट इज अवर इनकम। अब क्या करें? सर जो कैपिटल थी दिस इज नॉट री इशूड, अगर री इशू करा जाता तो वो कैपिटल बन जाती। बोलो हाँ या ना। तो अभी बुक्स में ओनली वी हैव टू शो दी फॉरफिटेड अमाउंट। तो हम इस फॉरफिटेड को, वो जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप था, उसी में ऐड करके दिखा देंगे भाई हमारी कमाई है। समझ में आया? बैंक में तो ऑलरेडी इंक्लूड होगा। देखो सारे बच्चे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? ऑथराइज सब्सक्राइब में दिखाया, सब्सक्राइब 45,000 शेयर, और ये ऐड करके दिखाया। बोलो यहाँ पर लॉजिक क्लियर हुआ ये सारे बच्चों को? क्योंकि हमारी कमाई है। ठीक है, और नीचे आप बैंक में देखोगे तो बैंक में पड़ा रहे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब एक लाइन और बोल रहा हूँ मैं, बताओ क्या बोल रहा हूँ? फॉरफिटेड बुक्स में तब तक रहता है जब तक डैश, जब तक रीइश्यू ना हो जाए। जैसे आप रीइश्यू कर दोगे
तो फोरफिटेड नाम की चीज़ भी खत्म हो जाएगी। समझ में आया नहीं है? अब देखो यहाँ पर पॉइंट में, व्हेन फोरफिटेड शेयर आर रीइशूड। अब जब फोरफिटेड शेयर आप रीइशू करोगे तो दो बातें आ रही हैं, बताओ दो बातें कैसे आ रही हैं? या तो वो फुल्ली पेड अप रीइशू हो रहे होंगे, या अभी इधर देखो मेरी तरफ, बड़ी बच्चों वाली चीज़ है, इधर देखेंगे 45 शेयर हमारे फुल्ली पेड अप थे, बोलो यस सर। अब इधर ध्यान से देखो, 5000 शेयर को आपने रीइशू करा। व्हेन यू आर रीइशूइंग दीज 5000 शेयर, देन यू हैव टू सी वेदर दीज 5000 शेयर्स आर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप। अगर वो फुल्ली पेड अप रीइशू हो रहे हैं तो वो अपने साथ ही मिला लेगा। हाँ। कहेगा तू तो मेरा भाई है, सेम क्लास का बन गया, बोलो हाँ है ना। कहता अच्छा तू मेरे ग्रुप में आ जा। क्यों आ जा मेरे ग्रुप में? हम भी अच्छे लोग थे, हम भी सारे फुल्ली पेड अप है, बोलो ना। तो वो 5000 दैट विल बी एडेड इन दी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और अगर जो हम 5000 शेयर रीइशू कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं रीइशू, अगर वो पार्टली पेड अप रीइशू हो रहे हैं तो वो फिर अलग से हेडिंग में जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली। क्लियर हो गई बात? बच्चों वाली चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बताओ? कैपिटल रिजर्व बचेगा, बोलो। जब आप शेयर रीइशू करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व आएगा, इट विल बी शोन, कहाँ शो करा जाएगा? रिजर्वेंट्स। तो ये वाला एग्जांपल आप खुद ट्राई करना, और भी शायद क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने सब कुछ इसमें दे रखा है। तो मुझे लगता है अब आपको पूरी बैलेंस शीट के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें क्या हो गई हैं क्लियर, बोलो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। स्टिल आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो प्रोराटा विद बैलेंस शीट्स वगैरह, देन यू कैन आस्क डाउट्स। ठीक है, थैंक यू।